हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और फीडबैक दो कमेंट में। um, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़नी छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। और जब ये क्वेश्चन जो इस वीडियो का सब्जेक्ट है, जब आप सोचोगे तो एक बारी को इंसान वंडर करता है कि हाँ, ऐसा कैसे हुआ होगा। और क्वेश्चन ये है, ये सब्जेक्ट ये है कि इनिशियली जब यूरोपियंस अराइव किए थे अमेरिकन शोर्स पे, जो अमेरिकन नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं उनके शोर पे, तो उनमें से किसी की भी भाषा एक दूसरे को नहीं आती हुई, क्योंकि वो न्यू वर्ल्ड उसको कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही नई संस्कृति, बिल्कुल ही नया फौना फ्लोरा, हर कुछ नया था, जो कि ओरिजिनल जो उसका ओल्ड वर्ल्ड जिसको कह सकते हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इससे बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड था। इन जगहों पे भी बहुत सारी जगहों में एक दूसरे की म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लैंग्वेजेस होती हैं, बट क्योंकि कुछ लोगों ने ट्रैवल किया होता है तो ऐसे लोगों का मिलना आसान होता है रिलेटिवली, या फिर पॉसिबल होता है कहना चाहिए, जो कि ट्रैवलर रहे हों या मर्चेंट्स रहे हों पुराने ज़माने में। मैं आज से 500 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इन वजहों से, अपने काम काज की वजहों से लैंग्वेज सीख ली हो, और जिन लोगों से उनकी डीलिंग्स होती हों उनके साथ डील करने की वजह से या बात करने की वजह से अपनी लैंग्वेज सीख ली हो। बट इमेजिन करो कि जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनको इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज जो ओल्ड वर्ल्ड की लैंग्वेजेस हैं नहीं आती होंगी, क्योंकि उनका कांटेक्ट ही नहीं था। और सिमिलरली यहाँ के लोगों को भी वहाँ की लैंग्वेज आने का कोई सवाल नहीं पता होता। तो कम्युनिकेशन हुआ कैसे होगा इनिशियली, फर्स्ट कैसे प्रोग्रेस किया होगा कम्युनिकेशन। तो इसके ऊपर बहुत छोटी सी वीडियो है और मैंने उससे ज़्यादा लंबा, मुझे लगता है, इंट्रोडक्शन दे दिया। तो चलो देखते हैं। When European sailors reached the New World, they soon came across the native peoples there, and these people had no idea of a Europe existing, let alone any idea of how to speak to a person from there. But as you'll know, contact was made, and in many cases complicated arrangements were negotiated between Europeans and natives. But given that there were no interpreters when Europeans first arrived, this raises a question. How did they communicate? How did European explorers talk to natives? So, generally speaking, when a culture makes contact with another, there's normally people along the way who can be used as interpreters. When colonizing Africa, Europeans would often bring Arabic-speaking peoples with them to translate. This was because बैड लक। अरबिक बंदा यूरोपियंस के साथ अफ्रीका में गया और अफ्रीकन बंदे को सोच रहा है बैड लक। तुम्हारी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की स्लेवरी का टाइम शुरू हो गया। trade had linked North Africa with the South for centuries, and in the larger kingdoms there would be people at ports who could speak Arabic. However, with the Atlantic Ocean and those living on the other side of it, there was none of that. So how did, say, Christopher Columbus communicate with the natives he met on Hispaniola when he arrived there in 1492? Well, for this, they used the only correct form of communication. They used signs. Now, this was mostly sign language, like pointing to things and saying its name or acting something out and then saying the word for it. But they would also इसको मर्डर कहते हैं, ये दिखाने के लिए बंदा उड़ा दिया। also make crude drawings as things became more complicated. This covered most of the basics, like food, shelter, Jesus, gold, and boats, but any complicated discussions would require a full translator. And since it would be pretty difficult to ask a native using a sign if they'd like to get on this ship and head back to Spain over an ocean for an immersive crash course in Spanish so he can act as the translator in the future for us, they settled for another option: kidnap. Unfortunately for Columbus and the natives he'd taken, they didn't survive very long because disease. So how did this change long term? Well, after this, the Spanish would सही में यार, कितने मिलियंस ऑफ नेटिव अमेरिकन्स मर गए उन डिजीज़ेस के प्रति, उनकी जो इम्यूनिटी नहीं थी जो यूरोपियंस लेके आए थे, उसकी वजह से। capture natives and they'd keep them in the region to learn the language so there was less dying. Another way was that some Spanish ships became shipwrecked, and those who survived would be taken as slaves by the natives and would soon learn their languages and could act as interpreters on behalf of the Native American rulers. आई थिंक डैनियल डे लुइस की एक मूवी है तो जिसमें वो द लास्ट पोकाहंटास भी एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब होती है। द लास्ट पोकाहंटास या लास्ट समथिंग, एक नेटिव अमेरिकन, जिस नेटिव अमेरिकन की ट्राइब में वो रहने चला गया होता है, वो बेसिकली यूरोपियन ओरिजिन का होता है, बट बचपन से ही उसको किसी अरे यार, मैं मूवी क्यों रूल कर रहा हूँ, मूवी देख लेना आप, डैनियल डे लुइस की, गूगल पे लिख देना डैनियल डे लुइस नेटिव अमेरिकन मूवी, आ जाएगा। बहुत सही मूवी है वैसे, वो उसकी बहुत ही अर्ली टाइम की मूवी है।
And once Spanish और जिन लोगों को डैनियल डे लुइस नहीं पता, भाई मूवी देखना छोड़ दो आप. नहीं नहीं, देखो देखो, पता करो कौन है. the natives knew one or two languages, the rest was fairly simple, since it simply meant stringing translators together to communicate. And it was after this short period that communication just became the same as it was anywhere else in the world. I hope you enjoyed this episode and thank you for watching. अच्छा, पता है जो एक लड़की और आदमी खड़े थे, ये उसको आके उसने क्यों दिखाया? ये जो ये लोग एक्चुअल में जो ओरिजिनल एक्सपेडिशंस भेजे थे यूरोप में, वो स्पेन की जो कह सकते हैं एम्पायर था, स्पेनिश एम्पायर ने भेजे थे. और वो दो स्पेन कंट्री के विद इन दो मेजर सेक्शंस ऑफ लैंड थे, जिनके जो राजा थे और रानी थे उनकी शादी हो गई थी. इज़ाबेला रानी और फर्डिनेंड राजा, इन दोनों की शादी हो गई थी, दोनों ने कंबाइंड एम्पायर बना लिया था. और इसके बाद रिकॉन्क्विस्टा शुरू हुआ था, जिसके तहत जो अरब कैलिफेट थी, जो स्पेन में ऑलमोस्ट 700 से 1400 मतलब 600 से 800 साल के लगभग रही है, गिव और टेक, उसको उन्होंने किक आउट कर दिया था. वो एक बहुत फैसिनेटिंग हिस्ट्री का चैप्टर है, रिकॉन्क्वेस्टा, और कैसे मतलब उन्होंने कम बैक किया. बहुत सारे लोगों को मरना पड़ा, जैसे कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट में होता ही है, बट फैसिनेटिंग नॉनदलेस. तो कभी बात करेंगे उस पर अगर टॉपिक उठा तो बेसिकली आई थिंक ये इज़ाबेला और फर्डिनेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों, आई गेस. Watching with a special thanks to my patrons, James Bizanet, Mr. अच्छा, इस चैनल का नाम है हिस्ट्री मैटर्स. बहुत ही फ़नी कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं इसी तरीके की, कोई चीज़ सिखाने के लिए. तो अगर आपको टाइम मिले तो चेकआउट. दैट्स इट, आई गेस. मैंने बोला था बहुत छोटी सी वीडियो है, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया. कुछ सीखने को मिलेगा जिसकी वजह से. दैट्स इट, थैंक यू.